আপনারা দেখছেন বাঁকুড়া টিভি ব্রেকিং নিউজ। বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবর এর পর্দায় তুলে ধরছি আজকের একগুচ্ছ খবর। আজ 7ই আগস্ট জাতীয় তাঁত দিবস 2026 উদযাপিত হলো সারা রাজ্য জুড়ে এবং সারা দেশ জুড়ে। আর আজকের এই দিনকে লক্ষ্য করে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, তিনি তাঁত বস্ত্রের উপর গুরুত্ব দিলেন। দেখতে থাকুন সেই খবর একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। सुरेश बसा के ना, लेकिन वही गौतम बसा के रखना साक्षात्कार नहीं है। হ্যান্ডলুম ডে আছে, আন্তর্জাতিক হ্যান্ডলুম ডে, সেই উপলক্ষে আজকে র্যালি। এই র্যালি কোথা থেকে শুরু হয়েছে? হাটকিল্লা রথতলা থেকে। কোথায় যাবে? এইখান থেকেই ঘুরবে। আপনার নাম? পঙ্কজ মহাতো। শাড়ির প্রচার চালাচ্ছি, তাঁতের শাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাঁতিরা তাঁতের শাড়ি কিনতে বলছি লোককে। তাঁতের শাড়ি কিনলে তাঁতিরা বাঁচবে, দেশের শিল্প বাঁচবে। এই আর আমরা এটা 2015 সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, প্রতি বছর 7ই আগস্টটা পালিত হয়। আমরা আজকে 6ই আগস্ট একটা র্যালি করছি বর্ধমান হ্যান্ডলুম ডেভেলপার্স অ্যান্ড প্রডিউসার কোম্পানির পক্ষে। এটা প্রচার করছি এবং তাঁতের শাড়ির মানুষ কিনবে, মানুষ তাঁতের শাড়ি পরবে, তাঁতের শাড়ি আরামদায়ক, তাঁতের শাড়িতে তাঁত শিল্প বাঁচবে, তাঁতিরা বাঁচবে। এই র্যালি কোথা থেকে কোথায় বন্ধ করলেন? এই র্যালি আমাদের হাটশিলা রথতলা থেকে আরম্ভ হয়ে বান্ধব সমিতি পর্যন্ত গিয়ে আমরা এটাকে টার্ন করছি। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম সুরেশ বসাক, আমি চেয়ারম্যান বর্তমান হ্যান্ডলুম ডেভেলপার্স অ্যান্ড প্রডিউসার কোম্পানি। ভালো রাখবেন, কোনো বিরোধ নয়, কোনো সমস্যা আমাদের উপস্থিত হয়েছে, সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরই করতে হবে। তাই এই র্যালি আগামী দিনে আমরা এখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে সারাদিন ব্যাপী এই শিল্প নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, সেখানে আপনাদের স্বাগত জানাবো। আপনারা আসবেন, আমরা একটা ভালো পরিবেশ যাতে তৈরি করতে পারি। আমাদের মাঠ পর্যায়ে এই যে কর্মসংস্থান, এই যে শিল্পের ব্যক্তি যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিচ্ছে, এই ক্ষয়িষ্ণুতাকে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। সেটা প্রতিরোধের মধ্যে साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से
कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। এরপর আসছি বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবরের পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরে। পিয়ারলেস হসপিটালে ভর্তি মিঠুন চক্রবর্তী। আর সেই মিঠুন চক্রবর্তী মিঠুন দাকে দেখতে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। দেখতে থাকুন সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। পিয়ারলেস হাসপাতালে প্রবেশ করতে আপনারা সেইগুলো দেখতে পাচ্ছেন। মিঠুন চক্রবর্তী তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আগামী গতকাল তার অস্ত্রোপচার হয় এবং সেই অস্ত্রোপচারের পর তিনি সুস্থ রয়েছেন সেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। আর এই মুহূর্তে হাসপাতালে শুভেন্দু অধিকারী তিনি এসে পৌঁছেছেন, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে এসেছেন। রয়েছেন সর্বরী মুখোপাধ্যায়, যাদবপুরের বিধায়ক। মিঠুন চক্রবর্তীর ডান হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তবে এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন। এর আগেও তার ডান হাতে এই অস্ত্রোপচার হয়। পরবর্তীতে আবারও তাকে ডান হাতে অস্ত্রোপচারের জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী তিনি পিয়ারলেস হাসপাতালে এসে পড়লেন, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ট্রিটমেন্ট ব্লক, সেখানে তিনি প্রবেশ করলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মিঠুন চক্রবর্তী তার শরীর কেমন রয়েছে সেই বিষয়টি দেখবার জন্য, খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি এসে পৌঁছেছেন এই মুহূর্তে। আপনারা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী তিনি মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে পিয়ারলেস হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন। ট্রিটমেন্ট ব্লক, সেখানে তিনি প্রবেশ করেছেন। মিঠুন চক্রবর্তী তিনি ভর্তি রয়েছেন। গতকাল তার ডান হাতে অস্ত্রোপচার। বাঁকুড়া টিভির পর্দায় দেখুন পরবর্তী খবর। ভবানীপুরের ঐতিহাসিক গুরুদ্বারা সন্ত কুটিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী, সেখানে তিনি প্রার্থনা এবং দর্শনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রেকিং নিউজ দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়।
ओ भैया आपका फ्रेम कैसे
की सहाय वार्षिक की काशी तस्वी प्रथम की शरण कै ज्ञान लेके आए चिरंतन गुरुदेव अरदास मंदस विधाई अर्जुन हर वदनो सगरो श्री हर राय श्री हर चित्याय तीर बहादुर सिमरय करुण दयाल भाई सब में सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब में सहाय दसवां पातशाह की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाठ दादा चढ़ करके बोला जी पंजाब प्यारे कहां सब जाते 40 कुत्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपिया वट छपिया दीप जलाई तेवाली किरण पिता तेरा प्यारे सजन की वायदा के अंतर की खालसा जी बोला जी जिन्हों सिगा सिगड़ी आने तरवी सी दिती बात बात कटाई कुपरियां रवाइयां चक्कियां ते चढ़े आरियां नाल कराई गुरुद्वारे की सेवा की कुर्बानियां कीतियां करुणी हारिया सिੱਖੀ ਕਿਸਾਂ ਸਵਾਸਤ ਸਵਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀ ਕਵਾਇਲਾ ਕਰ ਕਰਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤੇ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਹੋਈ जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ताता श्यार नेत्री भवि ददकी पैज की जीत श्री साहिब जी सहाई खालसा जी की गोल वाले बोला जी सिखा सिखीदार शीसदार रहदार बुद्धिदार सहदार भरोसादार दादादार नामदार श्री अमृतसर जी स्नान चौकिया छे गोगी जुग जुग कल धर्म काज बोला जी सिखाता बड़दीवा बात ऊंची बात दे राखी आप गुरु यह काल पुरख अपने पत्नी सदा सहाय दिता जियो श्री नड़काना सरती होर गुरुद्वारी गुरसामा जिन्हों को पत्नी छुड़िया गया उन्होंने दर्शनदार सेवा सुखाला दम खालसा जी बख्शो ये निवाणिया निवाणे गुरु ताड़िया दी ताड़े गुरु देवटिया योग वाहिगुरु धारण धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पातशाह आपकी दी अपार कृपा रखता जियो गुरुद्वारा संतपुड़िया दियां सुसंगतां वल्लों आपकी दी चरणों दा उपासना लेंदे होया अठवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी उन्हां दे प्रकाश गुरपुरब मनाउंदे होए उतार जियो अज दे द्वार सजाएगी सजे हुए द्वारा अंदर सुखमणि सुख अमृत प्रावना भगत जरा कै वरुण शराब दी वाह अपना साथ सतगुरु जियो सभी दी बाणी दा काम होया उपरांत इलाही बाणी दा मित्र होया श्री पौड़िया सभी दी बाणी दा पाठ होया दत्ता जियो बाणी दा पाठ करदे आ कीर्तन करदे आ सेवा करदे आ व्यस्त गलतियां भुला हो जांदियां अणजात जी बच्ची जान की माफ करना अगाह वास्ती शुद्धि स्पष्टकारी पढ़ती कीर्तन करण दी संगतां नूं सेवा संभाल करण दी समर्थ बख्शी सतगुरु जीओ कृपा करनी पढ़ी सुनी बाणी दा महत्व दाराइया समूह संगतां दे हृदय रखण की आशा नरो करो गुर सिद्धि वाला जी बख्शना नित्य दिया बाणियां दी धागे पढ़ गुरु का रण प्यार बख्शनी सेवा करन दी बल बख्शना दत्ता जीओ तातर श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी की बख्शी बख्शी हुई जीवन उपदेशा मुताबिक संगतां नूं जीवन जीवन दी बल बख्शनी शरीर प्राणी दाता बख्शी दत्ता जीओ दाते आईयां सुख संगतां दी हाजिरियां दाते पाठ करनियां चलिया करन लेके आउणा दिल बुल के ढावा दाते पाठ करनियां परिवारां दा सुख शांति दात बख्शणी बड़दियां मुकावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां दत्ता जीओ इस समय सेवका वल्लों आपकी सुंदर रुमाला सर्विट किया गया है ताकि आपकी नबी का किया कृपा करके लोग की पर्दे कजरी चढ़दियां फलादियां दाता होतियां समूह संगतां वल्लों आपकी दी खुशियां होइयां दाता विचों कड़ा प्रसादी दी सदके
हाजिर है दर प्रमाण में संगत विद्यार्थी जो जी शक्ति आप इधर प्रणाम सतम वाहिगुरु जिंदा शक्ति सदुजियो कृपा अटलती लाही प्रणाम पुष्टि दारायण संतमन मालकु खरादा काका परिक्रमा करना समस्ती कार्य करने एक प्यारी वीर जिनाम ले प्रणाम किया है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिल पूज्य है राज करेगा खालसा वाहे सब मिलेगी वाहे सब मिलेगी पूरे Krishna
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला आप समूह संगत को ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ पावन प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाइयाँ। हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी आज के इस गुरु हरिकृष्ण साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब के मौके पर हमारे बीच पहुंचे हैं। सर आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। कलकत्ते की समूह संगत, समूह गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटीज और जितनी भी सिख सोसाइटीज हैं उनके संगत जहाँ पहुंची है वहीं पर गुरुद्वारा कमेटीज एंड सोसाइटीज के मैनेजिंग कमेटीज के मेंबर भी पहुंचे हैं। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है सर। और सारी संगत का धन्यवाद ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप आके गुरुद्वारा सतकुटिया की तरफ से सम्मान चिन्ह और सिलोपाव जो है वो आप बोले सरदार राजेंद्र सिंह जी प्रधान संगठिया वालों सम्मान चिन्ह ਅਤੇ सरदार परमजीत सिंह जी वालों शॉल में सम्मान किया गया। सत श्री अकाल। गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत की तरफ से गुरदीप सिंह वाइस प्रेसिडेंट आके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। কোনাটাই চলে যাবে, কোনাটাই চলে যাবে, বসে গেল গার্ড হবে। सत श्री अकाल। सरदार गुरमुख सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिख सभा कोलकाता। सर आपको बताना चाहेंगे कि आज आपको जो सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है ये बंगाली में गुरु नानक साहब जी की रचना बोले सोनिहाल, बंगला में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिटरेशन जपजी साहब वाणी का है। आप जरूर समय निकाल के इसको रीड करना सर। सरदार कृपाल सिंह जी के द्वारा 22 नंबर रिवर साइड बैरक पर आपकी आके मुख्यमंत्री जी का सम्मान करो जी। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਆਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ परमजीत सिंह जी बोले सोनिहाल। गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग आलमपुर तो सरदार परमजीत सिंह जी। गुरुद्वारा सिख संगत डनलप ब्रिज तो इंद्रप्रीत सिंह जी, आप भी आ जाओ गुरुद्वारा। बोले सोनिहाल। सरदार बूटा सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा सिख संगत दमदम। गुरुद्वारा दमदम के प्रेसिडेंट सरदार बूटा सिंह जी बोले सोनिहाल। सरदार गुरदीप सिंह जी गुरुद्वारा सिख संगत बेहाला। सरदार गुरदीप सिंह जी बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। सरदार अजीत सिंह जी गुरुद्वारा गुरु का बाग नागरडांगा, गुरुद्वारा छोटा सिख संगत। सरदार अजीत सिंह जी, सरदार जगजीत सिंह जी
गुरुद्वारा सिख संगत शालीमार, गुरुद्वारा सिंह सभा शालीमार, सरदार कृपाल सिंह जी गुरुद्वारा बेलूर लीलवा हावड़ा शालीमार से बोले सोनिहाल। सरदार कृपाल सिंह जी गुरुद्वारा बेलूर लीलवा हावड़ा बोले सोनिहाल। सरदार गुरमीत सिंह जी सिख फोरम कोलकाता बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ शब्द हमारी संगत के साथ में शेयर करें प्लीज। मैं पहले आज 8वां गुरु जी का प्रकाश पर्व है। ये संतकुटिया गुरुद्वारा हमारी बहुत पवित्र स्थान है। मैं जब भवानीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नवीनीकरण करने गया था, यहाँ माथा टेक के गुरुदेव का आशीर्वाद लेके यहाँ प्रेयर करके मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ से प्रसाद लेके मैं नामांकन करने के लिए गया था और सबको आशीर्वाद मुझे मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और भवानीपुर से मैं विधायक रूप में चुनाव में जीता है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आप सब लोग जिम्मेदारी दिया है। मैं खास करके मेरा बहुत सामान्य सिख समाज के प्रति आभारी हूं। मैं चुनाव जीतने का बाद, चीफ मिनिस्टर बनने का बाद हर सार्वजनिक सभा में मैं ये बात बार बार उठाया कि भवानीपुर क्षेत्र में कम से कम 5000 सिख समाज का वोट था। 99.9% सब दिल से, प्यार से, बहुत उम्मीद के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज का ये जो प्रकाश पर्व है, 8वां गुरु जिनको सब लोग बाल गुरु बोलता है, मैं ये पावन पर्व पर सबका साथ मुलाकात करने के लिए आया और संतकुटिया गुरुद्वारा कमेटी ने मुझे ये मौका दिया। मैं उनके ऊपर आभारी हूँ। और हमारी पश्चिम बंगाल की कलकत्ता का जितना भी एडजॉइनिंग एरिया है, दमदम से लेकर बैराकपुर से लेकर हावड़ा से लेकर राजबेरी से लेकर बड़ा बाजार से लेकर सब गुरुद्वारा कमेटी और हमारी सिख समाज के लिए, देश के लिए, पश्चिम बंगाल का तरक्की के लिए जो सोच रहा है, सब लोग का इतना आशीर्वाद आज मुझे मिला। आने वाला 5 साल जिस उम्मीद का साथ आप लोग मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, मैं निभाने का काम करूंगा। और खास करके पश्चिम बंगाल में सिख समाज के डेवलपमेंट के लिए उनका हॉस्पिटल, उनका स्कूल, उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका प्रतिष्ठान, सबको किस तरीके से और भी अच्छा किया जाए, इसके लिए मैं कमिटेड हूं। ये काम मैं करूंगा। अब मैं भवानीपुर क्षेत्र में मैं अभी बोल रहा था, मेरा जो बुजुर्ग आदमी है, सब लोग है जो मुझे आशीर्वाद दिया है, हमारी दादा के समान है सब, ये हमारी सब लोग एडवाइजर है मेरा। मैं बोला क्या क्या करना चाहिए, आप थोड़ा लिख के मुझे दे दीजिए। मैं 15 अगस्त का बाद, स्वाधीनता दिवस का बाद बुला लूंगा सेक्रेटरिएट में, बैठ के बात होगा। कुछ करना चाहिए, ये
करने का मौका मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। और बाकी दूसरा लोग को भी जो मुझे इतना प्यार दे रहा था, स्वागत कर रहा था, मैं बोला आप लोग का क्या दिक्कत है, बिजनेस में क्या दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत है, आपका क्या क्या चल रहा है, स्कूल चल रहा है, क्या क्या करना चाहिए मुझे बोलिए। कोई कोई बोला कुछ दिक्कत तो है नहीं। आप पूरा विश्वास का साथ आपका बेटा, आपका भाई, इसके ऊपर विश्वास रखिए, सबको लेकर चलूंगा, अच्छा ही होगा। और आज का दिन मैं फिर एक बार गुरुदेव को और हमारी सबको मैं प्रणाम करते हुए, आप सबको आशीर्वाद देते हुए, मैं इतना बड़ा मौका आज आप लोग इस पावन पर्व पर दिया है, प्रकाश पर्व पर दिया है, इसलिए फिर एक बार मैं मेरा दिल से सबको वंदन करते हुए मैं मेरा बात यही खत्म करता हूँ। सब अच्छा रहिए। जो बोलो सर्वयाल की जय। सर प्लीज एक मिनट और थोड़ा दीजिएगा। हमारे बीच में हमारे कोलकाता के JIS ग्रुप के सरदार तरनजीत सिंह जी, सरदार हरनजीत सिंह जी, वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आके CM साहब का सम्मान करें। उनके साथ मेरा 20 साल का साथ। सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इनका सर कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा काम है सर। भाई जी थोड़ा घूम के बोले सोनेहाल। गुरुद्वारा कामचोली से सरदार अमरदीप सिंह जी धंजल, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि CM साहब का आकर सम्मान करें। और गुरुद्वारा हावड़ा से सरदार सतपाल सिंह जी, भाई जी घूम बोले सोनेहाल। सिख नारी मंच की तरफ से भी सिख नारी मंच की तरफ से भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर गुरुद्वारा सिख संगत बजबज को भी सिख नारी मंच की तरफ से नरेंद्र सिंह जी, बोले सोनेहाल। गुरुद्वारा बजबज सिख संगत को हमारे बीच, हाँ जी, साडे कोला घाट तो साडे बहुत ही हरमन प्यारे वीर पप्पू वीर जी पहुंचे हैं, शेरे पंजाब वाले। बोले सोनेहाल। एक मिनट भाई एक मिनट। हाँ जी। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल के प्रेसिडेंट सरदार पवनजीत सिंह, भाई थोड़ा घूम के, बोले सोनेहाल। थोड़ा घूम जाओ। गुरुद्वारा बजबज को सम्मानित किया गया। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल वालों सरदार पवनजीत सिंह जी CM साहब का सम्मान करेंगे। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल के प्रेसिडेंट सरदार पवनजीत सिंह जी, बोले सोनेहाल। पंजाब काउंसिल सिख काउंसिल के रघुवीर सिंह जी, जो कि राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं, उन्होंने बेनती है कि CM साहब का सम्मान करें। सरदार रघुवीर सिंह बिट्टू, बोले सोनेहाल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मैं बेनती करांगा गुरुद्वारा संत
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ जी, गुरुद्वारा सरगुड़िया की तरफ से, बेबे नाम की जनता की तरफ से बोले सोनिहाल। सो गुरुद्वारा सरगुड़िया ने प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे साडे मुख्यमंत्री सुरिंदर गांधी जी प्रधान हैं, सानू बहुत माण की गल है कि साडी वार्ड दे विचों जिते ने उदों भी बड़े मान की गल है मुख्यमंत्री बने, फिर अज साडे विच एक बहुत ही बड़ी मान की गल है। साडे सिख समाज नूं सारे गुरुद्वारा कमेटियां नूं इन्हां दा तहे दिल धन्नवाद करदे हां। होर भी पार्टी के आने सारे सज्जनों का ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, एक बेनती और सर जी अपना कि हम लोग का कोई भी काम होगा हम लोग आपका पास रहने में आएंगे, आप हमारी बात जरूर सुने, लिखते रहेंगे। आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपका धन्यवाद बहुत आए नहीं, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज हम कुछ नहीं किया, बहुत खुशी है। हाँ जी, मानते हैं बिल्कुल जी, आप भी हमारे, सरकार भी हमारे, ठीक है जी, ठीक है जी। वाहिगुरू आपको चढ़ती कला बख्शे, आपकी। हाँ जी, श्री गुरु नानक की बख्शे, आप ऐसे करो। ओके जी, वाहिगुरू जी को प्रार्थना करेंगे आपको तंदुरुस्ती बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समय में बेनती आ गुरु घर की मर्यादा कायम रखो, इस तरह ना करो। सारे अपनी जगह पे बैठे सी, बहुत बढ़िया तरीके का अपने बैठो, एक नाम जाए देकर लंगर सको। कोई भी इस तरह गुरु घर की मर्यादा, गुरु घर की मर्यादा भैया पीछे हो ना। हाँ, पीछे चल। भाजी पनीर खाली है बैठ जा बड़ा पीछे आ रहा सही आ रही है पीछे आ
তো হবে না, আপনি লাইভ করছেন, আমি আমার কাজ করছি। Howdy, lange, weg. Lange.
पीछे पीछे रखा था पीछे खा लेना दो भाई पीछे को ऊपर खड़ा रहना ठीक नहीं वही आदमी लग रहा पीछे को हो जाओ पीछे साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ चलो 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 जी इधर लंघे जाओ इधर लंघे खा भी বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবর এর গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ দেখতে থাকুন। আপনার শিলিগুড়িতে এসজেডির বোর্ড বৈঠক 2.5 বছর পর প্রায় 100 কোটি উন্নয়ন প্রকল্প দেখতে থাকুন। সেই বোর্ড বৈঠক একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায় হচ্ছে বোর্ড বৈঠক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে বরণ পর্ব চলছে, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক 2.5 বছর পর এই এসজেডির বোর্ড বৈঠক শিলিগুড়িতে এবং 100 কোটির উন্নয়ন প্রকল্প এর বোর্ড বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। উপস্থিত রয়েছেন চেয়ারপারসন চেয়ারম্যান এসজেডিএ অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং, উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল এমআইসি, উপস্থিত আছেন অনারেবল এমওএস। জিটিএনে তো তদন্ত কমিটি গঠন হচ্ছে, সেই প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের কি কোনো ইনকোয়ারি আওতায় আনা হবে? এনকোয়ারিতে প্রভাবশালী বড় ছোট এগুলোর বিষয় নয়, এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারনাল ইনকোয়ারি হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় হচ্ছে রিটায়ার্ড জাস্টিসের দ্বারা এখানে একটা তদন্ত করা হবে। প্রথমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারনাল ইনকোয়ারি হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় আমাদের ইউডিএমএম মিনিস্টার মহোদয়ার কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই এই কাজটা করব। এর সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিটি হল, কোথাও হচ্ছে এই যে শ্মশান ঘাট, আর এই আরেকটি বিষয় উঠে এসছে ইলেকট্রিকের কাজ, এই সমস্ত কাজগুলোই হবে। এটাই মূলত আজকে আলোচনা আছে। এসজেডিএ ফান্ড ইউডিএমএম থেকে আসে, এসজেডিএর ফান্ড ওন রেভিনিউ কালেকশন থেকে আসে এবং এসজেডিএ আমরাই আবার বেশ কিছু এসজেডিএর কাজ তার ফান্ডের জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যালাইড ডিপার্টমেন্টের কাছে আমরা আবেদন করি। ধরা যাক মাটিগাড়া পরিবহন নগরী, সেখানে আমাদের যে বাস টার্মিনাসটা করবার কথা হয়েছে তার ফান্ডটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী আনন্দময় বর্মন ওনার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আমরা চেয়েছি। এবং ধরা যাক আমাদের পার্কিং
সেই ফান্ডটাও হয়তো আমরা ইউডিএমএম এর কাছ থেকে চাইব। এইভাবে নিজস্ব অর্থ, ইউডিএমএম থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং বিভিন্ন অন্যান্য দপ্তরের কাছ থেকে আমরা এই কাজগুলো করবার জন্য আর্থিক সহযোগিতা কিছু কথা উঠেছে, ফলে আমরা একটা ইন্টারনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এনকোয়ারি করবার জন্য আমরা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই পুরো বিষয়টা নিয়ে একটা ইন্টারনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করা হবে, এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করা হবে। এরপরে আমরা যেটা করেছি, আমাদের দুজন সম্মানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রী তারা দীর্ঘদিন ধরে একটি বিষয় নিয়ে বিরোধী থাকাকালীনও আমরা এটা বলেছিলাম যে কাওয়াখালীতে অনেক ল্যান্ড লুজার্সদেরকে নিয়ে বিভিন্ন তাদের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা এসছে। তো মাননীয় মন্ত্রী এবং আনন্দময় বর্মন সাহেব এবং শ্রীমতী শিখা চ্যাটার্জি সম্মানীয় বিধায়িকা তারা এই ব্যাপারে সিইও সাহেবের সাথে বসে এটা দ্রুত সমাধান করবার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি এবং এই ব্যাপারে আশা করি এইটা দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে আমরা ঠিক করেছি যে আমাদের এসজেডি এর কাছে যত জমি আছে সেটা এবার আমরা পাবলিক করে দেবো। পাবলিক করে দেওয়া অর্থাৎ এখন মানুষ ওয়েবসাইটে গেলেই এসজেডি এর হাতে যে জমিগুলো আছে সেই জমিগুলো দেখতে পারবেন এবং তারা এক্ষেত্রে যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী এসজেডি এর কাছে আবেদনও করতে পারবেন। এতদিন ধরে মানুষের কাছে জানা যেত না যে এসজেডি এর কাছে কোন জমি আছে কি নেই। এরপরে দুটো আরও বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন এসজেডি এর একটা পুরনো L4 L5 যে বিল্ডিংটা আছে ওই টার্মিনাসের উল্টো দিকে, ওটা খুব ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। তো এখানে আমরা একটা নতুন এখানে আলোচনা করবার মধ্যে দিয়ে ওখানে যারা আছেন তাদের সাথে বসেই ওখানে একটা নতুন ভাবা হয়েছে, কেননা ওটা একটা প্রাইম স্পট এবং বিল্ডিংটা এমন অবস্থায় আছে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। ফলে এই বিষয়েও একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের সাথে বসে ওখানে একটা নতুন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স আমরা তৈরি করব। জলপাইগুড়ি যাওয়ার রাস্তায় তো এই 35 কিলোমিটারের মধ্যে তিনখানা টোল যদি হয় তাহলে তো গাড়ি চালক, প্রথম কথা এই তিনটে টোল বসানো এবং টোল থেকে যে পরিমাণ অর্থ, টোলের জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাদেরকে দিতে হয় তার থেকে বহুগুণ তারা এই রাস্তা হওয়াটার জন্য তাদের সাশ্রয় হয়। এবং এটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে ওই রাস্তার ঠিক পাশেই একটা ক্যানেল আছে এবং প্রতিদিন যেভাবে ওই রাস্তাটার উপরে চাপ পড়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমাদের যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় সেটা অনেক। ফলে এটা মাথায় রেখে আমার মনে হয় যে এটা সামান্য অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং পরবর্তীকালে আরও যেহেতু রাস্তা তৈরি হচ্ছে তখন পরবর্তীকালে দেখা যাবে এই রাস্তাগুলোর উপরে চাপও কমবে এবং যখন চাপ কমবে তখন এই বিষয় নিয়ে আরেকবার সম্প্রতি গত রোববারই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দাবিকে সম্মান জানিয়েই এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারনাল এনকোয়ারির কথা হয়েছে। সেখান থেকে যেটা বেরোবে তারপরে দাঁড়িয়ে আমাদের রিটায়ার্ড জাস্টিসের দ্বারা হবে কি সিবিআইয়ের দ্বারা হবে সেটা নিয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তাদের ওপিনিয়ন সিক করব, তারা যেভাবে আমাদের গাইড করবে আমরা সেভাবে। বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবরের পরবর্তী খবরে আসছি। 2000 গ্রেফতার করেছে ইতিমধ্যে। আপনারা জানি না কি যে সৈকত বহাল কেসে সেই সোমনাথ কেল্টোকে অ্যারেস্ট করেছে হালিশহর থানা। তাকে সোমনাথ কে ছিল? সোমনাথ কে ছিল? সোমনাথ কে ছিল? সোমনাথ সোমনাথ কে ছিল? আর কে জড়িত রয়েছে? ইতিমধ্যে হালিশহর থানা ওপেন করেছে। সোমনাথ
পুলিশ হালিশহরের বাসিন্দা 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোমনাথ গাঙ্গুলি তাকে অ্যারেস্ট করেছে। তাকে আজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য করছি হালিশহর থানার সামনে। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন গাঙ্গুলি, যার নাম কেল্টো, 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সোমনাথ কেন মেরে দিলে? আর কে জড়িত রয়েছে? সোমনাথ আর কে জড়িত আছে? গ্রেফতার করা হয়েছে আর কে জড়িত আছে? যে সোমনাথ আর কে জড়িত আছে? কেসে একটু মাইক নাও না, সৈকত ভাওয়াল কেসে সেই সোমনাথ কেল্টোকে অ্যারেস্ট করেছে হালিশহর থানা। আর কে জড়িত আছে? তাকে কেল্টো আজকে আর কে জড়িত আছে? কেল্টো বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবরের পরবর্তী খবরে আসছে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজ। দেখুন, সোদপুরের কুখ্যাত দুষ্কৃতী বোচা ওরফে মানস লোধা অবশেষে করতহ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। বিভিন্ন খড়দহ সহ বিভিন্ন থানায় এই বোচার বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। আর খড়দহ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং এই বোচা, এই কুখ্যাত দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হওয়ার পর পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে খুব উগরে দেন। দেখুন, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোচা ওরফে মানস লোধা কুখ্যাত আমি তো কাজ চাইতে আসলাম এত বছর পর, আমাকে তো কেউ কাজ দিচ্ছে না, তাতে বলছে আমি টাকা চাইছি। আমি কারো কাছে টাকা চাইনি। কত টাকা নিয়েছিলে মোট? কারো কাছে 1 টাকাও নিইনি। 1 টাকা নাওনি? কেউ বলতে পারলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাবো। আরে দড়ি তো ছিঁড়ে যাবে। ছিড়বে না, গলায় দড়ি দিলে আবার। স্যার 14 বছর আমি বাইরে ছিলাম, 14 বছর আমাকে কিন্তু আমার এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। আমি কি করেছি? কে ঢুকতে দেয়নি? এই নান্টু ঘোষ ঢুকতে দেয়নি, নির্মল ঘোষ ঢুকতে দেয়নি, এখন গোবিন্দ শাহ ঢুকতে দেয়নি। তো এখন ঢুকেছি, আমার যেই এই পার্টি চেঞ্জ হয়েছে আমি ঢুকেছি, আমার জন্মস্থান আমি থাকতে পারবো না। আমি ঢুকলেই বলে কি আমি এর কাছে টাকা চাই, ওর কাছে টাকা চাই, আমার নামে ফাও বদনাম দিচ্ছে। আমার একটা কাজ দিকেও বৈশা থেকে আমি কাজ করবো, সেই সুযোগ আমায় দিচ্ছে না। আমার মরামার মুখ দেখতে দেয় না। বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবরের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের ব্রেকিং নিউজ। ভবানীপুরের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের তিরঙ্গা যাত্রা, জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের ভিড় সার্ভে বিল্ডিং এর সামনে। অপূর্ব ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্রেকিং নিউজ দেখতে পাচ্ছেন। সেই শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের তিরঙ্গ যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব। দেখুন, সার্ভে বিল্ডিং এর সামনে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ভিড় করছেন। দেখতে থাকুন সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আর আগামীকালও এই জিনিসটা আপনি ভালো করে আরো আমরা করতে পারবো। এই জিনিসটা দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। আনন্দ হচ্ছে আমরা এই মিছিলে জয়েন করে ভারতবর্ষের
বাঁকুড়া টিভিতে খবরে খবর এর শেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং নিউজে আসছি। বস্ত্র শিল্প সম্মেলন আজ শুরু হলো। এই 7ই আগস্ট তাঁত শিল্প বা তাঁত বস্ত্র দিবস উপলক্ষে আর এই আপনার এই বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ 7ই আগস্ট আপনারা জানেন জাতীয় তাঁত দিবস। এই জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষে শুরু হলো বস্ত্র বাণিজ্য শিল্প সম্মেলন। বস্ত্র শিল্প সম্মেলন আর এই বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। এছাড়াও রাজ্যের আরো অন্যান্য মন্ত্রীরা এখানে আছেন, যেমন আপনার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী আপনার দিলীপ ঘোষ মহাশয়, কিন্তু উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। এই খবর আপনারা দেখতে থাকুন। বস্ত্র শিল্প সম্মেলন আজ 7ই আগস্ট 2026 তাঁত দিবস উপলক্ষে শুরু হলো বস্ত্র শিল্প সম্মেলন। আর এই বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। हम सुशील पोद्दार जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मिनिस्टर फॉर MSME टेक्सटाइल्स एंड स्कूल एजुकेशन माननीय श्री दीपक बर्मन जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS ऑफिसर श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। अगर पिछले 50 वर्षों की बात की जाए तो भारतीय सनातन संस्कृति का ये अद्भुत दृश्य शायद पश्चिम बंगाल में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, जब भगवान श्री गणेश का उन्मुक्त भाव के साथ पूरे वैदिक परंपरा के साथ पूजन यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में श्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एक ऐसा एक्सपो जिसकी निगाहें पूरे देश की लगी हुई हैं। पूरे देश के व्यापारी चाहे वो किसी भी प्रदेश के क्यों न हो, बंगाल के इस कोलकाता कोटूर एक्सपो में अवश्य आते हैं और यहाँ से जो नई फैशन है उसके साथ तालमेल करते हुए एक बहुत बड़ी डीलिंग होती है इस 2 दिनों के एक्सपो में। और ये कलकत्ता कोटूर एक्सपो का ये 4th एडिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सरल स्वभाव है कि वे आजकल जहां भी जाते हैं सभी से बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं और वहां की पूरी जानकारी ग्रहण करते हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी पदाधिकारियों से, हमारे दोनों अध्यक्षों से और चेयरमैन से इस एक्सपो के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। और सीधे गणेश पूजन के बाद अभी रिबन का कार्य होगा और रिबन कटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पश्चिम बंगाल सरकार के एक और मंत्री श्री उमेश राय जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और हम अपने उमेश राय जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री उमेश कुमार राय जी भी आए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं।
धीरे धीरे कदम ताल करते हुए स्टेज की ओर हमारी प्रतीक्षाओं की घड़ियां अब समाप्त होने को है और हम जिस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स, जहां लगभग 200 से अधिक स्टॉल्स लगे हैं हॉल ए और हॉल बी में, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और इस उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। दोनों तरफ कतारों में स्टॉल्स के सामने हमारे सभी एग्जीबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स और बिजनेस लीडर्स खड़े हैं उनकी अगवानी में। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर श्रद्धेय अजय कुमार नंदा जी भी पहुंचे हुए हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। एक निवेदन है, सामने जिस गैलरी से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पधारेंगे, दोनों तरफ जो लोग बीच में खड़े हैं वे तुरंत हट जाएं और स्टॉल के अंदर चले जाएं। आपसे सुरक्षा कारणों से यह निवेदन किया जा रहा है कि जो लोग स्टॉल्स के गेट पर खड़े हैं कृपया थोड़ा सा अंदर चले जाएं। सुरक्षा कारणों में आप जानते हैं कि भी विशेष कड़ाई चल रही है और इसलिए आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पैसे से, जिस गैलरी से सामने आ रहे हैं, उसके सामने कोई खड़ा न रहे और सभी अंदर होकर खड़े होकर के ही उनकी अगवानी करेंगे। बीच का रास्ता खोल दिया जाए, उनका रास्ता सुगम कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। और साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये एक्सपो का 4th एडिशन, 3 सफल एक्सपो के बाद ये 4था संस्करण, जिसमें आज अपनी पावन उपस्थिति से इस एक्सपो का गौरव बढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी। में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता श्री विद्यासागर मंत्री भी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम विद्यासागर मंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। बर्मन जी स्टॉल्स का भी अवलोकन कर रहे हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ ऑफिसर श्रीमान अनूप अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। हम अनूप अग्रवाल जी का भी हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। कुछ ही समय में हमारे सभी अतिथि मंच पर उपस्थित होंगे।
बहुत सी दुकानें हैं जो पार्क स्ट्रीट में संचालित होती हैं और हमें पार्क स्ट्रीट थाना के ओसी श्री सुमित चटर्जी महाशय का बहुत ही सहयोग मिलता है। आज पार्क स्ट्रीट थाना के ओसी श्री अमित चटर्जी महाशय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बस कदम ताल करते हुए कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सभी अधीर हैं कि जब बंगाल के नए मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री जो दिन रात बंगाल के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, वे आज हमारे एक्सपो को गौरवान्वित करने के लिए हमारे उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं। समाप्त होने को है। कुछ ही कदमों का फासला रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी हमारे स्टेज की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और जनप्रिय राजनेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी का हम एक बार फिर से अपने कोलकाता कोयटोर एक्सपो में हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम एक ही नारे से करते हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय हमारे बीच पधार चुके हैं। हम जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करते हैं। और मैं हमारे दोनों अध्यक्ष और चेयरमैन श्री प्रदीप खेतान जी, श्री निर्मल सराफ जी और श्री अरुण गोयनका जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को लेकर के मंच पर पधारें। श्री निर्मल सराफ, प्रदीप खेतान जी, निर्मल सराफ जी और अरुण गोयनका जी से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। मंच पर पधारने के लिए मेरा अनुरोध है पश्चिम बंगाल। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महाशय का। आज हमारा सौभाग्य है और मुझे ऐसा लगता है कि आज एक स्वर्णिम पल है जब बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे एक्सपो में आके हमारा गौरव बढ़ाया है। जोरदार तालियां। सरकार के माननीय एमएससी टेक्सटाइल्स और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री दीपक बर्मन जी से कृपया मंच पर पधारें और हमारे सरकार के माननीय सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर पहुंच चुके हैं। बंगाल के माननीय श्री
मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें और स्थान एमएसएमई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वरिष्ठ ऑफिसर श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका हम स्वागत करते हैं। एमएसएमई के डायरेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रदीप कुमार दास महाशय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, बंगाल के इतिहास में गारमेंट इंडस्ट्री और साड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए आज निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमारा ये 4th एडिशन है एक्सपो का और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। 2 दिनों तक चलने वाला ये एक्सपो जिसका 4th एडिशन है, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी व्यस्तता के बीच पधारेंगे, लेकिन हमने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पधार कर हमारा गौरव बढ़ाया। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ में हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और अब मैं सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मैं निवेदन करता हूं हमारे चेयरमैन श्री प्रदीप खेतान जी और श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी से कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का पूरे एक्सपो परिवार की ओर से दोनों एसोसिएशन, कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन और साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करें। आगे बढ़ाएं। श्री प्रदीप खेतान जी हमारे चेयरमैन और श्री आलोक अग्रवाल जी से निवेदन है कि आएं और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का विधिवत स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें।
शुरुआत की है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आवास योजना के संबंध में भी नई सूचनाएं देनी है। एक बार पुनः तालियां बजाएं कि हमें बंगाल को 50 वर्षों के बाद में एक ऐसा एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर मिला है जो दिन रात बंगाल की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा और बंगाल में किस प्रकार से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो सके उसके लिए दिन रात लगे हैं। वेलकम स्पीच प्रदीप खेतान। मुख्यमंत्री जी, हमारे दादा श्री शुभेंदु जी अधिकारी, माननीय उद्योग मंत्री श्री तापस राय जी जो किसी काम में लेकिन जरूरी मीटिंग में हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में, माननीय टेक्सटाइल मंत्री जी श्री दीपक वर्मा जी, मनोज अग्रवाल जी और सीपी साहब, मंच पे उपस्थित अन्य सदस्यगण, सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कलकत्ता कुटीर एक्सपो आज 4 साल का हुआ है। सर मैं आपको बता दूं, ये 4था साल है कलकत्ता कुटीर एक्सपो का। हमने 2023 में इसकी शुरुआत की थी और इस 4थे वर्ष में आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं कि इसको और आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपसे बात हुई कि आपका पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कलकत्ता साड़ी डीलर एसोसिएशन एवं द साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से कलकत्ता कुटीर एक्सपो का यह प्रोग्राम हम करते हैं, जिसके अंदर ऑल इंडिया से 5000 व्यापारी आते हैं और कलकत्ते के 200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर अपना जो आइटम बना रहे हैं वो प्रेजेंट करते हैं। सर 1000 करोड़ का ये बिजनेस होता है और जैसा कि आपको हम लोगों ने सूचित भी किया था और आपसे बात भी हुई थी सर कि हमारी ये इंडस्ट्री 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। सर हम लोग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे, हम इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारी इंडस्ट्री से सर 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग प्लान बनाए हैं और आपसे जैसे बात भी हुई है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद चाहेंगे सर, और हम ये चाहेंगे कि आपका सहयोग आशीर्वाद होता रहे, बंगाल भारतवर्ष में 1 नंबर बने। हम सभी मेंबरों की यही इच्छा है कि भारत को बंगाल में 1 नंबर बनाना है। इसी के साथ हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से यह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं यह सफल होता है। आपका सहयोग जैसे मिला है आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री राम। আমাদের চেয়ারম্যান জানালেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশন 500 কোটি টাকা নতুন ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য প্ল্যান রেডি রেখেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন এটাতে যাতে সাড়া দেন, একটু বিচার করবেন যাতে বাংলায় আমাদের শাড়ি উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। सारा भारत है, बंगाल की जो भी है, बंगाल का जो हैंडलूम है, बंगाल की जो चीजें हैं पूरे देश में पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पॉजिटिव सोच के साथ में निरंतर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, इस उद्योग पर भी ध्यान देंगे। एक बार जोरदार तालियों से इस विचारों का भी हम सम्मान करें। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सब हम अधीर हैं, लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट के MSME, टेक्सटाइल्स और स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर ऑनरेबल श्री दीपक बर्मन महाशय भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा उनके आशीर्वाद के भी 2 शब्द हम सुने। माननीय श्री दीपक बर्मन महाशय, उसके बाद सिर्फ मुख्यमंत्री महाशय को हम सुनेंगे। नमस्कार। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সকলের মধ্যমণি হয়ে আছেন আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যার সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গ স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। সেই সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আছেন, আমার কলিগ উমেশ রায় মহাশয়,
আছেন আমাদের সম্মানীয় মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল মহাশয়, আছেন আমাদের এই এমএসএমই ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব শ্রী বিনোদ আগরওয়াল মহাশয়, অনুপ আগরওয়াল মহাশয় সহ আমাদের সিপি সাহেব আছেন উদ্যোক্তাগণ, সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার যে আমাদের এখানে আপনারা বিনিয়োগ করুন, এবং শুধুমাত্র যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন তারাই শুধু বিনিয়োগ করবেন তা নয়, আপনাদের পরিচিত, আপনাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন অনেকেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদেরকে আপনারা নিয়ে আসুন। আপনাদের সর্বপ্রকারের সহযোগিতা যা সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব সেগুলো আমরা করব, এবং একই সঙ্গে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের সে একবার বরাবরই পথ দেখিয়ে এসেছে, মাঝখানে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে, সেই জায়গাকে আমরা মোচন করে দিয়ে আবারও আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি আপনাদের বিস্তারিত জানাবেন। সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीपक बर्मन महाशय। देवियों सज्जनों, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि 50 वर्षों के बाद शायद ये पहला मौका है जब हमारे मुख्यमंत्री सनातन संस्कृति के सम्मान के साथ भगवान श्री गणेश का पूजन भी करते हैं। ऐसा मौका कभी आपने पहले शायद नहीं देखा होगा। एक तरफ सरहद की सुरक्षा, बॉर्डर के लिए 1000 एकड़ का जमीन का दान और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं बंगाल के विकास के लिए। और अब में एक भी हाथ खामोश न रहे, बंगाल के जितने भी एसोसिएशंस के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से मेरा अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। श्री शुभेंदु अधिकारी। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, आप सबको मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से, मेरी ओर से और सभी मंत्रिमंडल की ओर से मैं तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। इतना बड़ा व्यवस्था आप लोग ने किया। अभी बंगाल में जो बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कानून व्यवस्था को ठीक करके और जो काम डबल इंजन का सरकार शुरू किया, इसका साथ जोड़ने के लिए हमारी मान्यवर व्यापारी जन, मैं विश्वास करता हूं ये जो हमारा सक्सेस बिजनेसमैन है कलकत्ता नगर का और आसपास का, ये सब ट्रू पेट्रियोटिक पीपुल है, राष्ट्रवादी पीपुल है। देश को निर्माण में और बंगाल का जो बुरा हालत बना दिया पिछले 50 साल में, इससे बंगाल को फिर निकाल के अच्छा तरीके से ले जाने के लिए आप लोग का जो कोशिश है, इसको मैं फिर एक बार वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ मेरा कैबिनेट कॉलीग, एक बड़ा स्कूल का हेडमास्टर, एक आदर्शवादी विचारधारा का नेता, युवा नेता दीपक बर्मन जी है। उनको मैं स्वागत करता हूं। मेरा मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, युवा नेता उमेश राय जी, जिन्होंने यूडीए में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम देख रहा है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। पूरा प्रदेश में मंत्रिमंडल, सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र ने हम लोग देकर चुनाव में लड़ा, ये केवल 3 महीने के अंदर जो काम हम लोग करने का कोशिश कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारा काम जमीन में उतारने का काम जो कर रहा है हमारी चीफ सेक्रेटरी
मनोज अग्रवाल जी सीनियर आईएएस, उनका साथ एससीएस है हमारी होम पावर एमएसएमई अनुप अग्रवाल जी, हमारी सीपी कलकत्ता सीनियर आईपीएस ऑफिसर, पूरा नगर का ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था जिन्होंने देख रहा है, अजय नंदा जी, और मेरा साथी विद्यासागर मंत्री जी, जिन्होंने काला कानून जरूरी अवस्था का वक्त उन्होंने जेल में भी बिताया बहुत सारे दिन। विद्यासागर मंत्री जी, मैं उनको स्वागत करता हूं। पत्रकार है, देखिए यहाँ आलोक अग्रवाल जी और प्रदीप खैतान जी मुझे बुलाया था, सरकार को इनवाइट किया कि आप आइए, खुद एक बार देख के जाइए। बहुत सारा काम हम लोग कर रहा है, सरकार को इसमें मदद भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। मैं प्रदीप जी, अलग जी और पूरा टीम को, देखिए ये दोनों तो काम इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता, बहुत सारा है सब लोग, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है। मैं सबको एक साथ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग ये सब काम किया। देखिए इसमें जो जानकारी मेरा पास आया है, 200 आपका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, 200 बायर्स यहाँ आपका बुकिंग भी होगा, थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग होगा। यहाँ कम से कम 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच यहाँ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये एक बड़ा काम है, इसमें आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा, इसका साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल सूरत से आ रहा है, वहां का जो रॉ मटेरियल जो करता है उनका भी फायदा होगा, वो भी देश के नागरिक। जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो सूरत का नाम सुनते ही बोल देता है वो तो बाहर ही है, वो तो ये देखिए देश है, सूरत का फायदा होगा इसमें। आई एम प्राउड इंडियन, मेरा गर्व करना चाहिए। कलकत्ता का फायदा होगा तो गुजरात का लोग को भी, ये तो हमारी देश है। इसलिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम लोग को पाकिस्तान से बचाया और 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन कर दिया, नहीं तो हम लोग का हालत आज बांग्लादेश का जैसे हुआ है, वो हालत में हम लोग को गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां का रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ का जो आर्टिजन है, यहाँ जो कारीगर है, उसका साथ जो बहुत सारा लोग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक चेन चलता है, पूरा बिजनेस चेन, सब पश्चिम बंगाल का लोग उसका फायदा मिलता है, मिलेगा उनको। देखिए पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत तगड़ा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, कारीगर बहुत स्ट्रांग कारीगर है। ये लोग को ठीक तरीके से सरकार, बिजनेसमैन और जो व्यवस्था है उनके अंदर एक साथ हम काम करेगा तो हमारी प्रदेश का जो हालत है वो भी सुधर जाएगा। हर बिंदु में पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, बंगाल के लिए मैं गर्व अनुभव करता हूं। ये भूमि स्वामी विवेकानंद जी का भूमि है, श्री चैतन्य देव का भूमि है। ये सिटी को सिटी ऑफ जॉय पुकारता है लोग, तिलोत्तमा कोलकाता। ये हमारी कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, ये आध्यात्मिक भूमि है, ये एडुकेशन का भूमि है,
ये तो सब है, लेकिन बर्बाद जो हुआ है, आज जो आंकड़ा हमारी सामने है, उसको भी हम लोग को उठाना चाहिए। उससे कैसे हम निकल के आए, उसका भी रोड मैप बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का जो हालत वो सुधारने के लिए उन्होंने काफी सारा प्रयास शुरू कर दिया। खुद उन्होंने स्टेटहुड डे में तारकेश्वर में आया, बहुत सारा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया। उनका बाद उन्होंने वर्ल्ड योगा डे कलकत्ता में मनाया, आप लोग पार्टिसिपेट किया। कलकत्ता गार्डन रीच से ही हमारी देश से निर्मित हमारी जो नौसेना का जो शिप है उसको लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी सब मंत्री जी को बता दिया, तुम तुरंत बंगाल जाओ, वहां काम करो, हर मोर्चे में बंगाल को, पश्चिम बंगाल को खड़ा करना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है। देखिए, पहले तो कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जिस तरीके से गुंडागर्दी, सिंडिकेट राज, काटमानी, चांदा वसूली, जिस तरीके से माहौल था उसको तो बदलना चाहिए। पहले बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, इंडस्ट्री के लिए अच्छा पॉलिसी होगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जमीन का व्यवस्था होगा। देखना है, सोचना है, छोड़ के काम करना है, ये नीति होगा, तब तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोग आपको एश्योरेंस दे रहा है, 3 महीने में आपको थोड़ा मौसम बदल रहा है, इसका तो थोड़ा सिग्नल भी मिल रहा है, कुछ गुंडागर्दी नहीं होगा। यहाँ कॉरपोरेशन में मैं कुछ स्टॉल होल्डर को पूछा, जो हमारी विशिष्ट जन है कलकत्ता का, जो ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल रहा है, अभी ऑनलाइन में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, साफ सुथरा है, कंजर्वेंसी का काम ठीक ठाक हो रहा है। बोला हाँ, अभी तो ठीक ही चल रहा है। कुछ आदमी ने बताया पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्किंग तो है, कॉन्जेशन बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, धीरे धीरे ये सब करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके ऊपर जो भी मदद सरकार की ओर से करना चाहिए, जरूरी होगा तो कानून बदलना चाहिए, विधानसभा में कानून भी बदल दूंगा। आप लोग को कॉन्क्रीट प्रपोजल आप दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो सब डिपार्टमेंट के लेकर बैठ के बात करके मिनिस्टर साहब का पास भेज देगा, MIC के पास, MIC मेरा पास दे देगा। हम लोग एक सिस्टम से काम करता हूं, अच्छा गवर्नेंस के हिसाब से काम कर रहा हूं, सब हम लोग कर लेगा। मेरा डे बिफोर ये स्टार्ट दिल्ली का दौरा था, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर का साथ मेरा बात हो रहा, बंगाल का जो 8 लाख करोड़ डेट है, यहाँ GST से 2017 से चल रहा है, ऑडिट नहीं हुआ है, एकमात्र स्टेट जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है। उसका बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले सरकार ने इतना अपशब्द यूज किया, उसका बाद भी 90% एजेम्पशन के ऊपर रुपया भारत सरकार ने देते रहा। ये GST की रुपया सरकार को, स्टेट को जाना चाहिए, नहीं तो स्टेट कैसे खड़ा होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये फाइनेंशियल जो डिस्कशन था उसका अलावा दीदी निर्मला दी ने 2 बात मुझे बताया। शुभेंदु जी, में 2 सेक्टर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, बंगाल को मैं मदद करूंगा। मैं उनको बताया, पूछा, बोलो एक तो टी गार्डन को लिए, मैं चा श्रमिक को लिए कुछ करना चाहिए, टी गार्डन को करना चाहिए, 25 टी गार्डन बंद है। और मैं पूछा दूसरा, बोलिए
दूसरा टेक्सटाइल के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैं विधानसभा चुनाव का पहले मैं बाड़वान में पूर्वस्थली है, वहाँ बहुत वीवर्स है, वहाँ मैं दौरा किया। मैं नदिया, शांतिपुर, फुलिया ये सब दौरा किया। मतलब देख लिया इतना हाई क्वालिटी वहाँ है तांत की सामान, इतना इसमें काम हम लोग को करना चाहिए। उन्होंने आ रहा है 24 अगस्त से 28 के बीच आ रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कनाडा जाएगा, उनके बाद आ रहा है। मैं आपका 5, 8, 10 आदमी का साथ एक मीटिंग भी करा दूंगा, आधा घंटा 45 मिनट। शी इज थिंकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, पूरा टाइट है आज का शेड्यूल। यहाँ ही बढ़ना पड़ेगा क्रेडाई का साथ। ये हमारी ऑफिस है यहाँ, वहां से पूरा दिन चलेगा, लंबा चलेगा। बहुत सारा काम हम लोग को आज करना पड़ेगा, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा किया आप लोग, पूरा मदद मिलेगा। आप अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। सरकार आपका सरकार है, सरकार आपका सरकार है। आप लोग बंगाल को खड़ा करने के लिए आगे आइए, हम लोग भी साथ रहूंगा। एक शब्द का साथ मैं बात खत्म करूंगा, ये अमृत काल है। अमृत काल को भरपूर आप लोग यूज कीजिए और हम सब एक साथ काम करूंगा। आने वाला 1-2 साल के अंदर बंगाल वीक स्टेट नहीं रहेगा। बंगाल बहुत फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रांग स्टेट रहेगा, सब में आगे बढ़ेगा। और हर महीने हमारी भूमि पूजन इन्वेस्टमेंट चल रहा है। हम लोग आप तक कर दिया हमारी लाक्स कोजी का एक इन्वेस्टमेंट भूमि पूजन। दूसरा अमूल भी आ गया है यहाँ। अच्छा दही मिठाई बनेगा, मीठा दही कार्ड ও মিষ্টি দই তৈরি হবে, আমুল বানাবে। আমুল দুটো জায়গা চেয়েছে, আইসক্রিম বানাবে নর্থ বেঙ্গল আর সাউথ বেঙ্গল 15 একর করে, ওটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। এই হিউজ হবে। सैम स्टील का एक भूमि पूजन एक्सपेंशन का कर दिया 15,000 करोड़। फिर 17 को एक है पुरुलिया में अमित मेटालिक का 4,000 करोड़, वहां भी भूमि पूजन हो रहा है। 1 महीने के अंदर आज हमारी कैबिनेट है, हम लोग 1 महीने के अंदर कम से कम 25 इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड हैंडओवर करने जा रहा है। लैंड परचेज पॉलिसी चालू कर लिया है। किसान जमीन हम लोग को दे रहा है, लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी चालू करने के लिए सोच रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्ट करेगा, कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं आप लोग को थोड़ा दिक्कत में पड़ता है, सब यहां से हो जाएगा। सब अच्छा करके हम लोग कर देगा। अच्छा रहिए। और इस साल दुर्गा पूजा का पहले पूरा देश आपका यहां से बुकिंग कीजिए। और इतना अच्छा सुंदर टेक्सटाइल का खूबसूरत आप लोग सजाया, इसके लिए आप सबको मैं अंतर से वंदन कर रहा हूं। और एक काम आप लोग किया, गणेश जी का वंदन किया। गणपति उत्सव आ रहा है, गणपति उत्सव से शुरू होगा हमारी त्योहार, देश की सर संस्कृति, बड़ा संस्कृति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। बंगाल का अमृत काल शुरू हो चुका है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा निर्मल सराफ जी, और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ में जनगण मन के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सब करे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद हम अपने अन्य अतिथियों के सम्मान के क्रम को जारी रखेंगे। इसकी कृपया आप रखिएगा। और अब श्री निर्मल सराफ धन्यवाद ज्ञापन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु दा, हमारे एमएसएमई मंत्री दीपक बर्मन साहब, राज्य मंत्री